Let us discuss for the subject entrepreneurship for class 12. Previously, in various episodes, I have started to discuss the forms of business entity chapter, unit number 2, chapter number 2.1. Sole proprietorship, partnership, joint Hindu family business, cooperative societies I have discussed already, and joint stock company also features I have discussed. Right now, the types of company I will start. There are two types of companies are discussed here: private company and public company. Private company means the government is not aligned with that. The private people are the owner. The private people are the owner of the company, shareholders of the company. But with the private people, government is also the shareholder. In that company is called the public company. So here the basically two things are discussed mainly: private company and public company. That the private company gets extra privilege than the public company. A privilege means the benefit. And what are the differences between private company and public company? These two things are discussed. But one thing, the differences as it is same with the privilege. अगर प्रिविलेज का क्वेश्चन हम पढ़ लिए आंसर ठीक से तो डिफरेंस भी हमको समझ में आ जाएगा. प्रिविलेज में क्या बोला? प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है. जैसे कि नंबर 1, प्राइवेट कंपनी कैन बी फॉर्म्ड विद द मिनिमम नंबर ऑफ 2 मेंबर्स, बट पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 7 नंबर लगेगा. जैसे कि हम लोग को मालूम है प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 2, मैक्सिमम 50, एंड पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड. सेकेंड नंबर प्रिविलेज, प्राइवेट कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर मिनिमम 2 लगेगा, लेकिन पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इज नीडेड 3. नंबर 3 पॉइंट इज कमिंग, प्राइवेट कंपनी अगर खुलेगा तो उसके लिए शेयर होल्डर्स का नाम लिस्ट, दैट इज इंडेक्स नंबर का कोई ज़रूरत नहीं है. बिना इंडेक्स नंबर का प्राइवेट कंपनी चल सकता है. बट पब्लिक कंपनी हैज़ टू मेंटेन द इंडेक्स नंबर ऑफ द शेयर होल्डर्स. नंबर 4, a private company can issue the loan to the directors without taking the permission from the government, but public company has to take the permission from the government before issuing the loan to the directors of the public company. Number 5, it is not compulsory for the private company to hold a statutory meeting, that is, and file a statutory report with the register. पब्लिक कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड करने का कंपलसरी नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी हैज़ टू अरेंज द एनुअल जनरल मीटिंग और स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड द रिपोर्ट टू बी ऑल्सो टू बी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट. स्टैट्यूटरी मीन्स द रूल्स रेगुलेशन को मेंटेन करते हुए जो रिपोर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट. पब्लिक कंपनी को स्टैट्यूटरी रिपोर्ट भी बनाना पड़ेगा. Essential, that is must for the public company. There are, number 6 point, there are no restrictions on the numbers, appointment and the remuneration of directors of a private company. Private company के लिए remuneration, appointment, number of director का कोई restriction ऐसा नहीं है. minimum 2 है, maximum रख सकता है. Whereas there are many restrictions on the appointment, number and the remuneration of directors of the public company. remuneration कितना होगा? डायरेक्टर को remuneration मिलता है, तो ये remuneration भी एक कंपल्सरी रिस्ट्रिक्शन है पब्लिक कंपनी में, लेकिन प्राइवेट कंपनी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. नंबर 7, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ए प्राइवेट कंपनी टू इशू द प्रॉस्पेक्टस. ये जो प्रॉस्पेक्टस इशू करके शेयर इशू करते हैं फंड या कैपिटल अरेंज करने के लिए, तो ये प्राइवेट कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं है कि प्रॉस्पेक्टस इशू करेगा. whereas it is compulsory or essential for the public company, that is public company has to issue the prospectus to raise the fund. Number 8, private company can commence
its business after getting certificate of registration. जो हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पढ़े थे बीएसटी में 11 में, वहाँ पे था देयर आर 4 स्टेप्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. नंबर 1 प्रमोशन, नंबर 2 capital subscription, number 3 certificate of incorporation, number 4 certificate of commencement of the business. तो प्राइवेट कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दैट इज द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद स्टार्ट कर सकता है एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी. लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट नहीं कर सकते. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बावजूद भी पब्लिक कंपनी को और कुछ ये वेट करना पड़ता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस के लिए. तो उसका एक सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, तब जाके पब्लिक कंपनी कैन स्टार्ट द बिजनेस एक्टिविटीज. So these are the privilege. The private company gets more benefit than the public company. So if the difference will come, there also you can see the whatever the format are given here in the book, the number of member is the point. So here we can write that the private company minimum number 2, maximum 50. Public company का घर में लिखेंगे minimum 7, maximum unlimited. फिर number of director point के हिसाब से भी difference लिख सकते हैं. Minimum number of director is 2 and maximum unlimited. और public company के लिए minimum director is 3. Invitation to general public, that is the public does not invite general public. जनरल पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर सब्सक्राइब, शेयर सेल करने के लिए जनरल पीपल को इनवाइट नहीं भी कर सकता है प्राइवेट कंपनी. दैट इज प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं भी कर सकता है, लेकिन पब्लिक कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकता है. तो वो पॉइंट से एक पॉइंट दिया इन्विटेशन टू द जनरल पीपल, वो पॉइंट से दिया. नेक्स्ट नंबर 4 पॉइंट दिया प्रॉस्पेक्टस पॉइंट से. प्रॉस्पेक्टस पॉइंट इशू करना मस्ट नहीं है प्राइवेट कंपनी के लिए, लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए मस्ट है. ट्रांसफर ऑफ शेयर डज नॉट परमिट ट्रांसफर ऑफ शेयर विदाउट प्रायर परमिशन. माने प्राइवेट कंपनी अपना शेयर सर्टिफिकेट को ट्रांसफर नहीं कर सकते, शेयर को सेल नहीं कर सकते प्राइवेट कंपनी में विदाउट गेटिंग द परमिशन. लेकिन पब्लिक कंपनी में शेयर सर्टिफिकेट सेल करना, शेयर सेल करना, कोई और शेयर को परचेज कर रहे हैं, दैट इज शेयर ट्रांसफरेबिलिटी इज पॉसिबल इन द पब्लिक कंपनी. स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड रिपोर्ट, यह पॉइंट पढ़ लिए, प्रिविलेज का पॉइंट पे था. इंडेक्स नंबर भी पढ़ लिए कि प्राइवेट कंपनी का इंडेक्स नंबर बनाने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी को इंडेक्स नंबर बनाना ही पड़ेगा. लीगल फॉर्मेलिटीज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम वेरियस लीगल फॉर्मेलिटीज़, अभी हम लोग उसमें पढ़े बेनिफिट या प्रिविलेज पॉइंट पे कि ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन प्राइवेट कंपनी में नहीं है, जहाँ की पब्लिक कंपनी में ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ मेंटेन करना पड़ता है. Minimum paid up capital. Minimum paid up capital, that is how much shares are purchased by the shareholder, and minimum paid up capital. फार्म कंपनी में जितना कैपिटल पे कर रहा है शेयर होल्डर, दैट इज कॉल्ड द मिनिमम पेड अप कैपिटल. पब्लिक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल है 1 लाख, जहाँ की पब्लिक कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल है 5 लाख. सो दीज आर द डिफरेंसेस. As well as the private company gets the privilege over the public company. Both are the same category of the question, but just answer writing का different category है. अगर difference देगा तो points of difference, उसके बाद private company, उसके बाद public company का format बना के वैसे लिखने से marks ज़्यादा आता है. और अगर privilege और benefit दिया तो point wise हम लोग लिखेंगे, लेकिन point wise जो लिखेंगे वहाँ पर भी हम point दे सकते हैं. यहाँ पे किताब में देखोगे कि point नहीं है, एक नंबर देके 2-3 लाइन एक्सप्लेन है, लेकिन उसमें भी अब पॉइंट निकाल के पॉइंट देके डैश देके अगर लिखेंगे तो ज़्यादा फुल मार्क्स आने का चांस रहता है. तो पॉइंट दे सकते हैं. फर्स्ट नंबर पॉइंट जो था यहाँ पे प्रिविलेज में, वहाँ पे मेंबर पॉइंट दे सकते हैं. जैसे डिफरेंस में पॉइंट दिया वैसे पॉइंट अगर वहाँ पर भी अप्लाई करेंगे तो मेरे को ज़्यादा मार्क्स आने का, फुल मार्क्स मिलने का चांसेस रहता है. सो गेट स्टडी फॉर दिस 2 टॉपिक. Let us discuss for the next episode. Okay, thank you for this.